Hello, my dear students of class 9th. Dear students, today the topic is the animal tissue for your learning in this video. Dear students, you are looking here the slide that is indicating the different types of the animal tissue which are made up of different types of the cells like the plants, and there are four major types of the tissues on the basis of their functions, that is on the basis of their functions in multicellular animal. So these are the four types of the tissues. These are the four types: epithelial, muscular, connective and nervous tissue. So epithelial means the tissue which is protective in nature, and muscular means the contraction and relaxation properties that is gained by this specific kind of tissue. Connective means that tissue that is connecting one part of the body from another part of the body inside the living body. And nervous tissue means that is conducting the functions, conducting the important functions of the brain and spinal cord, and conducting impulses in between the central nervous system and brain and spinal and other organs. तो बच्चों, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कार्ड होती है उसका, वो ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, और ब्रेन तथा विभिन्न प्रकार की नर्व्स जो है पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जो कि बनी होती है नर्वस टिश्यू की, नर्व सेल्स की, जो कि काफ़ी इलांगेटेड होती है. सो नाउ लेट अस टेक ए लुक ऑन द further more classification of this animal tissue. So today we will go through by this epithelial tissue. Dear student, epithelial tissues are the tissues which are responsible for the making the organ inner and outer lining, for the protection, for the secretion. Secretion means secretion of a substance, secretion of enzyme, secretion of hormone, etc. and making the organ tissue inside the organ, that is a thick layer. So on the basis of their structure, they has been divided into these types: A, B, C, D and E. 5 types. So these are the squamous, cuboidal, columnar, ciliated columnar and glandular, that is the secretory cells. सो ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल, वो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कैच दिस टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू once again, and in this video you will be able to learn about the epithelial tissue or epithelium. So students, come to this slide. This slide indicating the more detail about the epithelial. AP means upon, means ऊपरी परत. थीलियो means to grow. So ऊपरी परत जैसे जिस चीज से ग्रो करती है वो होता है सिंपल टिश्यू, and this tissue covers the entire body externally as well as internally. तो बाहर से और अंदर से ये टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. जैसे मान लीजिए ये एक मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी एक परत होगी और इसके अंदर भी एक परत होगी, बाहर भी होगी, अंदर भी होगी. तो इस प्रकार से ये अंदर बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को या सिस्टम को. जैसे ब्लड वेसल्स, लंग्स, द एग्जाम्पल्स आर ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल. तो ये सारे जो ऑर्गन होते हैं उनमें ये अंदर और बाहर की लाइनिंग बनाने का काम करता है. देन स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट, दैट इज द
The cells are tightly packed and form a continuous sheet. These are without intracellular spaces and intercellular matrix. तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, कहीं भी गैप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लेयर अगर ये बना रहे हैं तो दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, देयर विल बी नो गैप, नो ब्रेक ऑफ दिस। ओके, सो these rest upon the non-cellular layer known as the basement membrane। अब ये कैसे बने होते हैं आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो स्ट्रक्चर पे आइए अगर, तो आप ऐसे देखेंगे इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट थिक मेम्ब्रेन है और थिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये अरेंज रहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट की गई है जो जिसको कि कोलाजन बोलते हैं। जो बेस में मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम इस पर आप ड्रा करके देख सकते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि इस तरीके से बनी है, दिस इज कॉल्ड कोलाजन, और इसके ऊपर ये टिश्यू होंगे, इसके ऊपर इस तरीके से टिश्यू होंगे, तो इसको बोलेंगे कोलाजन, बेस मेम्ब्रेन है। और ये होते हैं डिफरेंट सेल्स उस टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू के। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर, एक ही लेयर की बनी होती है लेकिन बनी होती है। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ दीज एपिथेलियल टिश्यू। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई द एपिडर्मिस। आप देखेंगे कि पूरी शरीर पे जो है एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग, इंजरिंग एंड केमिकल इफेक्ट एंड इन्फेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन के ऊपर की लेयर। सब एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट द एंजाइम एंड हार्मोन्स, जैसे कि ग्लैंडुलर हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल है। सर्टेन एपिथेलियल सेल्स फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड सेल्स, ब्लड सच एज यूरिन, जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल की सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द इंटेस्टाइन, जैसे कि कॉलुमनर है। सर्टेन एपिथेलियल सेल्स रिसीव वेरियस स्टिमुलाई। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जैसे कि एपिथेलियम के ऊपर ही सेंस सेल्स होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं, और वो इंटरनल ईयर में होती हैं। सर्टेन एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। तो जैसे पेट के अंदर जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो एक म्यूकोजल लेयर के द्वारा सिक्रीट होता है, जिसको कि म्यूकस बोलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें एपिथेलियल सेल्स के इतने सारे काम हैं। अब देखिए इनके टाइप्स कितने हैं। नाउ सी द टाइप्स। सो दे आर ऑफ 5 टाइप्स: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर एंड ग्लैंडुलर। तो अब स्क्वैमस कैसा होता है ये देखिए, ये बिल्कुल इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, थिन एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप देख लें अगर, तो इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल एक मोजाइक जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स लगी हुई हैं। दिस इज द फ्री सरफेस, और बिल्कुल चद्दर की तरह से ये स्क्वैमस होता है, स्क्वायर शेप होता है, और एक लेयर के रूप में ये ढका रहता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल है इसका, एक शीट की तरह ढका रहता है। द सेल्स फॉर्म ए शीट लाइक स्ट्रक्चर विथ मोजाइक अपीयरेंस, जैसे फर्श पर मोजाइक होता है उसी तरह से ये। इट इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के सरफेस के ऊपर पाया जाता है एपिडर्मिस के रूप में। लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी लाइक माउथ कैविटी, मुख के अंदर आप देखेंगे कभी मुंह खोल के तो उसमें अंदर की लाइनिंग जो होती है वो इसकी होती है। इसोफेगस, फूड पाइप के अंदर बाहर की लाइनिंग होती है। ब्लड एंड डक्ट ऑफ द ग्लैंड, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा में ये पाई जाती हैं। मतलब इनका काम है सिर्फ टाइटली पैक करना पूरे स्ट्रक्चर को फॉर द प्रोटेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द स्क्वैमस, स्क्वायर शेप्ड सेल्स आर देयर। नाउ द फंक्शन, दे प्रोटेक्ट the underlying part of the organ from the injury, drying, entry of the any other pathogen, germs, etc. These epithelia save the easy exchange of the material by diffusion across the
जैसे मान लीजिए किसी को अगर पसीना आ रहा है तो पसीना कैसे होगा, ये अंदर से डिफ्यूजन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट स्वेट का निकलेगा। नाउ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये क्या होता है इसको आप देख लीजिए। दिस इज द कॉर्निफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, द सेल्स ऑफ द it is found in the skin and cover the external dry surface of the skin। कभी कभी एड़ी का या हथेली का आप हाथ अगर देख लेंगे तो काफ़ी ड्राई सरफेस होता है जिसके अंदर बहुत ही डिप्ड होती है क्यूबॉइडल, लेकिन आउटर सरफेस लेयर इज वेरी इन नेचर एंड द आउटर फ्यू लेयर्स आर डिपॉजिट ए वाटरप्रूफ केराटिन आर कॉर्नी सब्सटेंस। तो जैसे एड़ी की जो बाहर की परत है, पैर की जो एंकल है, फुट के नीचे का जो हिस्सा है, वो केराटिनस सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं केराटिनाइजेशन या कॉर्निफिकेशन। तो इसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर। माय डियर स्टूडेंट, कम टू दिस नेक्स्ट, दैट इज द क्यूबॉइडल। तो बाहरी परत के बारे में आप जान लिए कि ये बिल्कुल ये परत जो है वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, कभी कभी सिक्रेशन का भी काम करती है, ऑस्मोसिस वगैरह का भी काम ये परफॉर्म करती है। अब साथ ही साथ आप देख लेंगे इट सेल्स आर क्यूब शेप्ड। क्यूबॉइडल में इट सेल्स आर क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं, आइसो डायमेट्रिक एंड क्लोजली पैक्ड। दे आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली फिटेड टुगेदर, एक के दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड, स्क्वायर शेप होती हैं एंड देयर फ्री सरफेस अपीयर टू बी हेक्सागोनल। और इनका जो फ्री सरफेस होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। सो दिस डायग्राम इंडिकेट this one, this is the basement membrane, hexagonal cells are there, these are the cells, different cells termed as the cuboidal. And now you see this, that where they found in the some parts of the kidney tubule and duct of the salivary gland, thyroid gland, sweat gland। ये शरीर में विभिन्न प्रकार की जो आर्गन होते हैं उनमें पाए। एक्सोक्राइन मतलब कि जो हार्मोन वगैरह सिक्रीट कर सकें, जो एंजाइम वगैरह सिक्रीट कर सकें। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो हार्मोन सिक्रीट कर सकें। इट आल्सो फॉर्म द ओवरीज एंड लाइन्स ऑफ द जर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द दैट पर्टिकुलर आर्गन, मतलब उस आर्गन को मजबूत रखने में ये सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है कॉलुमनर एपिथेलियम। तो बच्चों ये देखो, इसका जो नेचर है, कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम में कई तरह की सेल्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलम है और ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये इसके ऊपर लंबी दे विल बी इलोंगेटेड, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे आहार नाल में स्पेशली अगर देखें आप तो ये सेल्स पाई जाती हैं जो कि ज़्यादा लंबा सरफेस कर देती हैं पाचन क्रिया के लिए, तथा इनमें से बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो सिक्रीट करती हैं तमाम तरीके के एंजाइम और अदर प्रोडक्ट्स। तो ये एक तो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और साथ ही साथ सरफेस बढ़ा देती हैं जिससे एब्जॉर्प्शन हो, और साथ ही साथ इनर लाइनिंग का प्रोटेक्शन का भी काम देती हैं। एंड दे विल बी फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द स्टमक, रेक्टम, गॉल ब्लैडर, ब्रोंकियोल ऑफ लंग, यूटेराइन ट्यूब एंड यूटेरस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं और ये लंबी होती हैं। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट
जो हम खाना खाते हैं पचता है तो उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एंड द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स कॉल्ड ग्लोबुलेट्स ग्लैंड्स, तो उसमें भी ये काम करती है, जो कि सिक्रीशन में भी काम करती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका रहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड में क्या होता है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल मीन्स द कॉलमनर, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स, हैज द न्यूमरस थिन डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। जैसे आप अब अगर नोज ले लें, नोज नेजल कैविटी ले लें, तो नेजल कैविटी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो वो जो हेयर्स निकले रहते हैं वो इन्हीं कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल से निकले रहते हैं। और दे आर फाउंड इन ट्रैकिया, विंड पाइप में भी पाए जाते हैं, ब्रोंकाई इन द लंग्स एंड ब्रोंकियोल्स विंड पाइप में भी, किडनी ट्यूब्यूल में और स्पर्म डक्ट में भी पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनका काम होता है मटेरियल को आगे पीछे हटाना। अच्छा, नेजल कैविटी में तो हेयर्स लंबे होते हैं, लेकिन अंदर के बॉडी पार्ट में ये केवल कुछ स्ट्रक्चर इनका इस तरह से होता है कि मान लीजिए ये कॉलमनर है, तो कॉलमनर हैं तो हैं, लेकिन इनका जो ये पोर्शन है ये थोड़ा सा निकला रहता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, पता नहीं चलता है, बट दिस इज नॉट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बट दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड पार्ट। एंड पार्ट थोड़ा प्रोजेक्टेड होता है जिससे कि ये मूवमेंट कर सके, इधर और इधर मूवमेंट करके मटेरियल को हटाने का काम करता है, चाहे वो म्यूकस हो या फिर अन्य चीज़ें हों। सो सीलिया बीट ओनली इन वन डायरेक्शन and thus expel mucus and dust etc. from the lungs to the exterior. Similarly, sperm and exterior to the exterior, बाहर की ओर फेंकते हैं। Similarly, sperm and ova descended downward। इसी प्रकार से sperm जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जर्म है या फिर फीमेल ओवा है, उसको नीचे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर मीन्स दे आर फाउंड इन द डिफरेंट ग्लैंड्स, लाइक इनमें क्या होता है, सम ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिथेलियम चेंज्ड इनटू द ग्लैंडुलर सेल्स। कुछ एपिथेलियल सेल्स ऐसी होती हैं जो ग्लैंडुलर में चेंज हो जाती है। ऑफ्टन ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। कभी कभी ये एपिथेलियल टिश्यू जो है फोल्ड हो जाते हैं, जो कि कॉलमनर हैं अंदर की तरफ, और दे फाउंड इन द स्किन लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिक्रेटिंग म्यूकस एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो वही है, कभी कभी ये कॉलमनर जो है फोल्ड होकर के अंदर जो है ग्लैंड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जैसे पैंक्रियाज का बनना हो गया, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाते हैं, और उनसे बहुत सारी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, ये इतना रहा आपका, दिस इज फॉर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड नाउ वी आर concluding this video with the notes that you have to learn this, you have to learn the animal tissue and complete notes, and the diagram, as far as the diagrams are concerned, you have to see it, you have to see diagrammatic representation। See here, this is the ciliated columnar। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे सीलिया हैं, ये सीलिया बहुत सारे हैं, ऊपर निकले हुए हैं कॉलमनर में, तो सीलिएटेड ये चीज़ों को आगे पीछे ढकेलते हैं। ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस जैसे सिक्रेट करने वाली ग्लैंडुलर सेल है, गोबलेट सेल है, ये कुछ और सिक्रेट करती है। तो इस प्रकार से ये सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि बहुत सारा हेल्प करती हैं बहुत सारे सिक्रीशंस में। अच्छा, ये है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल मतलब कि जो बाहर की परत है उसकी सेल्स हैं, कॉलमनर है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट सेल है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिंपल है, दे आर द सिंपल टिश्यू
and you have to take the assignment for this, learn the animal tissue, complete type of the animal tissue, so that you can be asked at any time and you can answer it, because you are studying in the CBSE class, not in the 7-8. So dear student, be serious and you have to join the online classes seriously, as well as see this video very seriously. And in the next video, dear students, we will be able to discuss about this muscular tissue or muscles. Muscles are muscular tissue which are of 3 types: striated muscles, skeletal, that is called the skeletal muscles, unstriated muscles are smooth muscles, and cardiac muscles. तो 3 तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं शरीर में. एक स्ट्रिएटेड या वॉलंटरी मसल होती हैं, ये स्केलेटल हड्डियों के ऊपर लगी रहती हैं. जब आप कोई काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो इन मसल से करते हैं. अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी मसल स्मूथ मसल होती हैं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं, विभिन्न अंगों को ऑपरेट करती हैं. ये आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते इससे कोई काम, इसका ऑटोनॉमस सिस्टम से काम होता रहता है. और तीसरी जो कार्डियक मसल्स है, ये कार्डियक मसल्स एक बार ये स्पेसिफिक होती है, ब्रांच्ड होती है, और एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर ज़िंदगी भर अपना काम करती रहती है. एक डायग्राम इसमें है स्ट्रिएटेड मसल्स का, जो कि बंडल में पाई जाती हैं, और ये बंडल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है. एक सेल में कई न्यूक्लियस होते हैं जिससे कि फिजिकल वर्क किया जाता है. तो बच्चों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मैं नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, और जिससे कि आपका ये एनिमल टिश्यू का पोर्शन ठीक से तैयार हो जाए. सो thank you for joining this video. If you are liking this video, please subscribe my channel. If you dislike this video, please put a dislike on it also. That will be beneficial for me to improve the teaching quality.